Hello and welcome to the channel Enrich and Enlighten. In the last video, we have discussed about common verbs for the daily uses, and we'll be giving the link of the last video in this video also. This is a second part of the last video on the same topic, that how we are going to use common day-to-day situations and try to learn English from it. And that is what we are doing, is that we are trying to put everything what we are doing in simple, plain, basic English. And what is the idea behind it? Idea is to get naturalized in these daily basic activities. All right. Today, let us take basic example of the verb eat, to eat. You may say, I want to eat. And again, you may say, I do not want to eat. I want to eat. मैं खाना चाहता हूँ. I want to eat. Now, you may add something to it, like, I want to eat dal. I want to eat rice. I want to eat chapati. I want to have breakfast. To have breakfast. Now, I want to have lunch. I want to have dinner. Here, you will not say, I want to eat breakfast. I want to eat dinner. Although, आपका कहने का मतलब वही होगा. But, it is not said like that. You say, I want to eat dal and chapati, dal and roti in the dinner. I want to eat sweets. I want to eat fruits. Alright? I do not want to eat. मैं नहीं खाना चाहता हूँ. जो कुछ भी आपने कहा, उसको do not लगा देंगे, तो वो नहीं के सेंस में हो जाएगा. I do not want to eat. Now, take another verb, like sleep. Again, you may say, I am sleeping. I do not want to sleep. I want to sleep. I am sleeping early. मैं जल्दी सो रहा हूँ. I am sleeping late. मैं देर से सो रहा हूँ. मैं सोना चाहता हूँ. मैं नहीं सोना चाहता हूँ. मैं जल्दी सो रहा हूँ. मैं देर से सो रहा हूँ. मैं बच्चों के साथ सो रहा हूँ. I am sleeping with my children. My pet is sleeping. कोई पालतू जानवर है, वो सो रहा है. But dog is sleeping. They are sleeping. आप कुछ भी कह सकते हैं sleep word से कि they are sleeping. For example, if you feel that people are not working, you may say people are sleeping. If you feel government is not working, government is sleeping. Right? कोई भी है, सो रहा है, sleep. I want to sleep. They are sleeping. Alright? Now take another verb, go. I want to go. मैं जाना चाहता हूँ. I am going. मैं जा रहा हूँ. I am going. Now कहाँ जा रहे हैं? To the hospital, to the school, to the university, to somebody's place. किसी के घर जा रहे हैं. Right? Go. I am going. I do not want to go. I do not want to go anywhere. I do not want to go to some particular place. Like you may say, मैं पार्क नहीं जाना चाहता हूँ. I do not want to go to the park. Alright? Go. They are going. He is going. She is going. We are going. Like this, you make sentences, small sentences with the verb go. And again, if you put do not, it will become a negative sentence where you may say that I do not want to go, they do not want to go, we do not want to go, like that. Now, take another sentence. Sit. I am sitting. Like when I am teaching you, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, I am sitting. You sit. आप बैठ जाओ. Please be seated. कृपया बैठ जाइए. कृपया, please. बैठ जाइए. Please be seated. कृपया बैठ जाइए. आप कई बार कहते हैं, कृपया तशरीफ रखिए. Right? Please be seated. या फिर please take your seat. Sit down. As an order, you may say, sit down. Sit down.
all right? Or as a request, you may put please sit down, right? I do not want to sit. I want to sit. मैं बैठना चाहता हूँ. They want to sit. He wants to sit. She wants to sit, right? You may say like this: sit, stand. All right, stand up. Sit down, stand up. You stand up. All of you stand up. सभी लोग खड़े हो जाओ. You stand up, तुम खड़े हो जाओ. I want to stand up. मैं खड़ा होना चाहता हूँ. I don't want to sit. I don't want to sit. I want to stand up. Please stand up. Everybody please stand up. Right? For example, अभी राष्ट्रगान होगा तो आप क्या कहेंगे? आप ये नहीं कहेंगे कि प्लीज स्टैंड अप. उस ऐसे सेंस के लिए यू मस्ट से लाइक प्लीज राइज. आप कहना यही चाहते हैं कि खड़े हो जाओ, पर ऐसे सेंस में यू मस्ट से प्लीज राइज, मतलब उठ जाइए. इट्स नॉट लाइक आप ऑर्डर दे रहे हैं कि खड़े हो जाओ. इट्स लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग दोज पीपल. आप उन लोगों से आशा कर रहे हैं कि वो लोग ससम्मान खड़े होकर के और राष्ट्रगान करें या नेशनल सॉन्ग गाएं, राइट? नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, राइट? You have Rashtragan, you have Janaganaman, and on the other hand, you have Vande Mataram, isn't it? So you may say, please rise. सिर्फ उन्हीं केसेस में please rise. Otherwise, आप कह सकते हैं कि stand up. Please stand up. किसी को ऑर्डर देना है, just stand up. Stand straight. Sit down. Please sit down. All right? Now walk. I am walking. I want to go for a walk. I want to walk. I do not want to walk. I am walking fast. They are walking fast. वो जल्दी जल्दी चल रहे हैं, वो धीमे धीमे चल रहे हैं. Walk, right? I want to take a walk. मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, या मैं थोड़ी देर के लिए चलना चाहता हूँ. Please walk with me. मेरे साथ चलो. Walk with me. मेरे साथ चलो. Right? Similarly, you may take sentence like for the verb read. आप क्या पढ़ रहे हैं? Like suppose आप कहो कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ. I am reading a book. I am reading a newspaper. मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ. I am reading magazine. मैं मैगजीन पढ़ रहा हूँ. I am not reading anything. मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ. मैं पढ़ना चाहता हूँ. I want to read. पर इस सेंस में जब आप कहोगे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप ये कहना चाहते हो कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे शिक्षा मिले, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, इसमें आप ये नहीं कहोगे कि I want to read. इसमें कहोगे I want to study. राइट? मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ. आप ये भी कह सकते हो, अगर इस सेंस में भी है कि उस वक्त आप कह चाह रहे हो कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आपको थोड़ी देर पढ़ना चाहिए, देन ऑल्सो यू मस्ट से आई वॉन्ट टू स्टडी. आई वॉन्ट टू गो टू स्टडी. अदरवाइज कोई विशेष चीज पढ़ने के लिए आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू रीड. आई वॉन्ट टू रीड और एनी पर्टिकुलर थिंग, जैसे मैंने कहा कि न्यूज़पेपर, बुक या कोई ऐसी चीज, पैम्फलेट, कोई ऐसी चीज. अदरवाइज You may say, I do not want to read. मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ. I do not want to read anymore. मैं अब और नहीं पढ़ना चाहता हूँ. लेकिन ये भी उस सेंस में नहीं आएगा, और उस सेंस में आ जाएगा I do not want to study anymore. Right? तो इस तरह से हमने बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स लिए, और हम ये देख रहे हैं कि जब हम ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स को, बहुत सारी डेली एक्टिविटीज, देखिए आप, हमने बहुत सारे जो वर्ड्स लिए हैं ये आपके कॉमन बेसिक डे टू डे डेली एक्टिविटीज के वर्ड है. ये जो भी दोनों वीडियो है, आज का वीडियो और इसके पहले वाला वीडियो पार्ट 1, ये दोनों ही वीडियोस हम सिर्फ ये सोच के बना रहे हैं कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज से को कैसे इंग्लिश में रखेंगे, उस पर कैसे इंग्लिश में ही सोचेंगे, कैसे उसमें नेचुरलाइज हो जाएंगे, जिससे कि आप नया कुछ सीख सके, इस बेसिक लेवल से ऊपर उठ सके. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में प्रॉब्लम जिनको फेस होती है, वो सिर्फ इसीलिए फेस होती है क्योंकि वो इस बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को नहीं ठीक से कर पाते, और यहीं पर वर्ब्स की गलती कर देते हैं, एडवर्ब्स की गलती करते हैं, कंजंक्शंस की गलती करते हैं. तो अगले कुछ वीडियोस जो हम पढ़ेंगे उसमें इन पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में पढ़ेंगे, बट हम डायरेक्ट
अप्रोच की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज ना करना पड़े. That is a faster approach, although that approach needs to have this sort of practice. कि जब हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि सीधे ही हमने इंग्लिश से ही सीख रहे हैं, इंग्लिश को स्ट्रेट अवे सेंटेंस फॉर्मेशन से सीख रहे हैं, तो हमें कुछ बेसिक सेंटेंसेस सीखने होंगे. जैसे हमने कल से लेके आज तक, पिछले वीडियो से लेके इस वीडियो तक जो भी बात कही है, उसके अंदर सिर्फ हमने एक्टिविटी को बदला है, वर्ब को बदला है. आप ईट की जगह स्लीप लगा लीजिए, स्लीप की जगह रन लगा लीजिए, रन की जगह वॉक लगा लीजिए, वॉक की जगह कुछ और लगा लीजिए, स्टडी लगा लीजिए. राइट, हम बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस को सेम रख रहे हैं और वर्ब्स को चेंज कर रहे हैं. एक बार आप ग्रेजुअली इस चीज में नेचुरलाइज होने लग जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, सिर्फ वर्ब ही तो बदलना है, और फिर आगे बड़े बड़े भावों को, बड़े बड़े विचारों को रखने के लिए सेंटेंसेस को बड़ा करना है. उस बड़ा करने के लिए ग्रेजुअली आपके पास, आप लेटर स्टेज पे आएंगे तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा. मेरी इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपसे सिर्फ ये प्रैक्टिस करने की गुजारिश है कि आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस में ही अपनी बात को कहना और उसको सोचना शुरू करें. जैसे जैसे आप इन्हीं सेंटेंसेस के थ्रू सोचना शुरू करते हैं, ये नेचुरलाइजेशन शुरू हो जाता है कि बेसिक बात को अंग्रेजी में ही कैसे सोच रहे हैं. और जब आप नेचुरलाइज होने लग जाते हैं तो इंग्लिश और बहुत मुश्किल चीज नहीं रह जाती. सिंपल सेंटेंसेस विद सिंपल ग्रामर आप उसको सीखते हैं. हम अगली वीडियोस ऐसे ही कुछ और बेसिक टॉपिक्स पे लाएंगे. तब तक के लिए हम चाहेंगे कि आप ऐसे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शंस को और प्रैक्टिस करें. और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, वॉच द वीडियो कंप्लीटली. फ्लिक ऑफ ए सेकेंड के लिए आप वीडियो देखेंगे, उससे शायद उतना लाभ नहीं होगा. वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखिए, वीडियोस को पूरा देखिए. ट्राई टू प्रैक्टिस. जितनी हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, इतने ही सेंटेंसेस नहीं एग्जिस्ट करते हैं. दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स. तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक इट. आपको लगता है दूसरे के काम का आएगा तो प्लीज शेयर इट. आपको लगता है कुछ और टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और भी चीजें कहनी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, please subscribe the channel. We are open to all the suggestions. We are open to comments. Please do let us know. Thank you for watching. Take care.